Good evening, viewers. My name is Manoj Kumar Chaturvedi, and I welcome you all on the EHRM World. EHRM World के प्लेटफार्म पे एक और वीडियो में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इन द मॉडर्न टाइम द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल इज हैज़ बीन वेरी relevant. So from that perspective, uh, we have brought some spectacular factor about the communication skill that by adopting them we can just make our communication skill, along with that reading skill, writing skill, listening skill and speaking skill very much feasible. So from that perspective, I have just written down some factor. Those are very important. Very important. I will just decode. I will describe one by one all these factors. Uh, in this video, the very first factor which I have and the very first feedback advice that I have, this is the how can we just enhance our reading skill. As you know that reading skill is very important skill. पढ़ने की जो क्षमता है या रीडिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट रीडिंग almost all the English content is impossible, because unless and until we don't have proper understanding about reading. So from that perspective, if we want to just go ahead in the speaking factor, so we need to just रीड एंड फॉर रीडिंग व्हाट ऑल वी कैन डू। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रीडिंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है कि हाउ हाउ वी कैन जस्ट इनहेंस आवर रीडिंग स्किल। और वो कौन से कंटेंट हैं, बाय रीडिंग देम वी कैन इनहेंस आवर रीडिंग स्किल। सो this is my feedback to those viewers or students that they should read high school and intermediate books, because if you read these books, in these books you will be collecting many vocabs, and these vocabs will help you a lot, and it will just build up very different energy in you that will make you perfect in the reading skill. तो जितना ज़्यादा हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो इंग्लिश की बुक है एनसीईआरटी पैटर्न की, जितना ज़्यादा डीप में जाके हम स्टडी करेंगे इन बुक्स के बारे में, उतना ही ज़्यादा हमारा मोरल हाई होगा एंड वी विल बी इनकरेज्ड अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल। सेकेंड थिंग विच आई हैव फॉर यू नाउ, दूसरी वो चीज़ जो हमारे पास है, दैट इज द राइटिंग स्किल एंड लेटर मैनेजमेंट। सो हाउ कैन बी मेक better our writing skill, or how easily we can make writing skill best. So by writing essay, by writing any article or story, that will make absolutely perfect your writing skill. After that, let me move on to the third skill, which is the listening skill. How can we just make our make strong our listening skill? For doing that, we have to go through the news and all, because if we listen carefully, जितना ज़्यादा ध्यान से हम सुनेंगे उसका उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट, वाइल स्पीकिंग, किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देते हुए, all these things will be very relevant for us, because if we have a proper concentration, किसी भी चीज़ पे अगर हम अपना माइंड स्टेबल कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, so after that when we are just speaking, then all these things will be just helping us out while just speaking. So after that, let me move on to the fourth factor, which is the speaking. Speaking come by speaking. एज यू नो दैट बोलना बोलने से आता है। जितना ज़्यादा हम किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे, जितना जितना ज़्यादा हम इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे कम्युनिकेशन स्किल पे स्पीकिंग का इफेक्ट पड़ेगा। आफ्टर दैट, लेट मी ब्रेक इट डाउन फर्दर इन द स्मॉल वर्ड्स। सो गाइज, एज यू नो दैट
आज इंग्लिश स्पीकिंग के जितने स्टूडेंट हैं या जितने व्यूअर हैं, दे हैव ओनली वन क्वेश्चन, उन सभी के पास केवल एक प्रश्न होता है, दैट हाउ कैन बी जस्ट मेक बेटर आवर कम्युनिकेशन स्किल। वो कौन सी चीज़ है बाय अडॉप्टिंग देम जिसको अपना करके वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंटली बोल सकते हैं, धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमको एक चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ ये है वोकैब्स कलेक्शन। जितने ज़्यादा हमारे पास शब्द होंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास वर्ड्स होंगे, किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने में उतना ही हमारे लिए इजी होगा। क्योंकि whenever we are describing or we are just doing the explanation of any particular thing, किसी भी चीज़ के बारे में हम समझा रहे हैं, टू मेक दैट पॉइंट, उस चीज़ को बताने के लिए हमारे पास जितने ज़्यादा ओकैप्स कलेक्शन होगा वो चीज़ उतनी ज़्यादा क्लियरली, उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली हम क्लियर कर पाएंगे। तो जितने ज़्यादा आपके पास ओकैब होंगे उतना अच्छा इम्पैक्ट आपका पड़ने वाला है ओकैब कलेक्शन प्रोस्पेक्टिव से। नेक्स्ट फैक्टर विच आई हैव फॉर यू, अगली वो चीज़ दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, वो है इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स, एज यू नो दैट people come from the village area, people come from the city, and people come from the many areas, but as you know that without atmosphere, बिना किसी एटमॉस्फेयर के, बिना किसी वातावरण, इंग्लिश स्पीकिंग वातावरण के, वी जस्ट कांट स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली, बिकॉज फॉर स्पीकिंग वी नीड वन पार्टनर, बिकॉज वी कांट स्पीक ऑन सेल्फ, हम अपने आप से बात नहीं कर सकते, that will not just enhance our speaking skill. So for that, इसके लिए हमको इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर की ज़रूरत है, जो हमारी चीज़ों को अच्छे से समझ के रिएक्ट कर सके और उसका हम बैकलैश दे सके। नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू, दैट इज द लेजिटिमेट टाइम। वी मस्ट हैव द प्रॉपर टाइम, हमारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक दैट we should decide timing that 1 hour 2 hour, that time when we can just discuss about the English, like 30 minutes 40 minutes for the theory classes and 40 minutes 50 minutes for the group discussion and all that, that can help us a lot from the English speaking prospect. Next point which I want to tell you, that willpower or passion for the speaking. विल पावर एक ऐसी चीज़ है जो हमको इंग्लिश बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, बिकॉज जब तक हमारे पास इच्छा शक्ति नहीं होगी या जब तक हम किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट नहीं होंगे, वी जस्ट कांट स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली। यू सी दैट, जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, दे हैव जस्ट दे लाइक जियोग्राफी, दे लाइक पॉलिटिकल साइंस, दे लाइक इंग्लिश, दे लाइक मैथमेटिक्स, दे आर profound mathematician. So each and every individual has his own preferences. प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक क्यूरोसिटी होती है, दे वांट टू जस्ट वर्क ऑन दैट, वो उन सारी चीज़ पे काम करना चाहते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सो इन द सेम वे, इफ वी डोंट हैव द पैसन और इफ वी डोंट हैव द विल पावर फॉर लर्निंग, फॉर स्पीकिंग, दैट वी जस्ट कांट स्पीक वेरी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश। Next point which I want to tell you, that is the practical attitude. How much practical you are. Practical means that आप कितने ज़्यादा frank हैं किसी चीज़ को लेके, because practical and frankness both are interconnected. जितने ज़्यादा आप blunt हैं, मतलब किसी भी चीज़ को लेके extrovert हैं, आपको hesitation नहीं होता है, उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपके लिए feasible होने वाला है। So that if you are very practical about that, you are not your stereotype thinking you have, or you are not just narrow minded, then this can help you a lot. This factor will help you a lot for the English speaking prospect. After that, self confidence generation. Guys, after learning many things, बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद अल्टीमेटली वी सी दैट, हम देखते हैं कि वी डोंट हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस जस्ट लाइक बिफोर द कैमरा और जस्ट बिफोर द स्टूडेंट। जैसे ही हम किसी पोडियम पे या स्टेज पे जाते हैं, एट द सेम टाइम वी लॉस्ट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा जो आत्मविश्वास है वो सडनली गायब हो जाता है, बिल्कुल हमको हमारे ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता है। सो आर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो वी शुड नॉट ब्लश आर एम्बैरेस्ड फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट सिटिंग स्टैंडिंग बिफोर अस, क्योंकि अगर आप
you are just thinking about those people, that what they will be just thinking about you, कि वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, then your strategy is not going to work out. So keeping them aside, उन लोगों को एक तरफ करके, you need to just explain or narrate or elaborate your point. That will also help you a lot from that perspective. So next thing that I have, that is the loud and clear pronunciation. Loud and clear pronunciation क्या है? स्वच्छ and साफ उच्चारण क्या है? जितना ज़्यादा हम साफ बोलते हैं, जितनी ज़्यादा हमारी ऑडियो, जितना ज़्यादा हमारा ऑडियो अच्छा, ऑडियो पिच अच्छा होता है, उतना ही ज़्यादा किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, फिगर आउट करने में हमको ईजी होता है. इसलिए loud and clear pronunciation is really very much obligatory, very much significant, very much important for you. Next thing that I have, how to be fluent or maintain fluency. Guys, जैसा कि आप जानते हैं, sometimes we see that people are speaking for 5 minutes or 10 minutes in a flow. 10-5 मिनट बिल्कुल ऐसे फ्लो में बोल जाते हैं without halt. So हाउ कैन बी जस्ट डेवलप फ्लुएंसी इन आवर सेल्फ. अपने अंदर हम लोग फ्लुएंसी, धारा प्रवाहिता कैसे विकसित करें, कैसे डेवलप करें. फ्रेंड्स, व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ वोकैब्स कलेक्शन इन योर ब्रेन, एट दैट टाइम व्हेन यू आर जस्ट गिविंग द रिएक्शन, जब भी आप किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया देते हैं, एट दैट टाइम दो थिंग्स आर कमिंग इन द सीरीज वन बाय वन, एंड that will just develop fluency in you, and whenever you speak you will definitely dominate, and your discretion will just always suggest you in that proper direction, so that you could develop the fluency in yourself. Next point that I have, that is the storytelling. Friends, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा आप एलेबोरेट करेंगे, जितना आप पुल आउट करेंगे, दोज थिंग्स विल स्ट्रेच आउट मोर एंड मोर. जैसा कि आप जानते हैं, in storytelling, sometimes when we make anything story, entertaining story or interesting story, so your point is just going extensive. आप चीज़ें डिटेल में बता रहे होते हैं, क्योंकि इनमें आप बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर रहे होते हैं. सो योर स्टोरी टेलिंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट विल बिल्ट अप आल्सो very significant factor in you. After that, how to manage event in brief. जैसे भी कोई भी इवेंट हमारे साथ होता है, इवेंट जैसे कोई भी घटना होती है इन सिंपल वर्ड, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करें इन द सिंपल वर्ड. सो गाइज, इफ यू जस्ट एक्सप्लेन इवेंट, any event, whether it's a tiny or just extensive or large event, so if you just explain it, that is also going to make strong your English very well. After that, next point that I have, that is the mutual effort and endeavorment of the speaking English. एक mentor होता है, एक teacher होता है, and another is the student. So the mutual effort and endeavorment, आपका और आपके टीचर का एक म्यूचुअल एंडेवरमेंट होता है. दोनों लोग साथ मिलकर किसी चीज़ को, इफ़ यू आर जस्ट मेकिंग हैपन, देन दिस विल जस्ट हेल्प यू आल्सो अलॉट फ्रॉम द इंग्लिश स्पीकिंग प्रोस्पेक्टिव. एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट दैट आई हैव फॉर यू, हैविंग फीमेल पार्टनर फॉर स्पीकिंग इज मोर फिजिबल. जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे पास अगर अच्छा पार्टनर है, इफ़ वी हैव गुड पार्टनर, लाइक मेल और फीमेल डजंट मैटर, बट इफ़ यू हैव फीमेल पार्टनर, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज विद द फीमेल्स वी आर इंटरेक्टिंग सो मेनी थिंग इन वन टाइम साइमल्टेनियसली. So if we are just having interaction with the female, so that will be also very much feasible, very much comfortable for both of you, for that girl and for you. So always try to find out such that male or female who have equal comprehension as you have about the English. So all these tricks I have for you guys, and for making all this video, we shall be keep coming with you. Thank you very much for watching this video. Keep watching and keep sharing all this video. Thank you very much. Have a great day.